Hello everyone, welcome back to my channel. And today first of all guys, I am creating a new channel just for the tarot purpose. I mean tarot readings. And this particular channel, I'm gonna keep it for other stuffs that I want to post. All right, so please do follow me there and for everyday messages. But this one today, just because it is 2026 and it's my first video in 2026, guys, I'm so sorry I don't post it regularly, but I try my best. But now going forward, I promise to post every day. Okay, so this video is gonna be like a very quick small video about what's coming for you in 2026. You're gonna take 3 piles as usual. Okay, there are many new beginnings happening this year, guys. So yeah, the energy for 2026 अभी तक ऐसा है कि 2025 में अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड रहा है for any XYZ reason, this year kind of will bring you थोड़ा relax वाला vibe. Okay, not like totally, but 2025 से थोड़ा light year. Alright, let's get into it. So this is pile number 1, this is pile 2, this is pile 3, and I'm gonna take this tarot card as well. What is 2026 bringing in for you people? What is 2026 bringing in for my community? We're gonna pull 2 cards, and this one right here, this is the Osho Zen Tarot. What is 2026 bringing in for my people? 1, 2, and 3. Alright guys, without wasting more time, let's just get straight into it. Also, I'm gonna do one more thing guys, which is this. मेरे पास ये काफ़ी टाइम से था, बट मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया. I use it for myself like on daily basis. So I'm gonna pick one color for each one of the piles, and then at the very last मैं इसको disclose करूँगी. Okay, so let's see. I'm just gonna close my eyes and pick one color, and this one should be first for pile number 1, pile 2, and pile 3. Okay guys, I want you to choose a color. Okay, and then I will see you on your pile. Tab tak ke liye till. Alright, so pile number 1, what do we have for you? What is 2026 bringing in for you? Okay, let's see. 6 of Cups. This was in reverse. Wheel of Fortune. The Emperor in reverse. Okay. This is of course definitely bringing a drastic change in your life. It could be अगर आपका कोई relationship है बहुत पुराना, काफ़ी सालों से आपका कोई relationship चल रहा है, maybe this year you will find some truth about this relation. It could be a relationship, it could be your work related or something, but किसी एक particular phase में. I'm not gonna go into the depth because it's just a quick general reading for 2026. I'll put more videos regarding 2026 and that will be in depth, but this today is just a quick video. So right, so I can see 6 of Cups in reverse, Wheel of Fortune, definitely bringing some kind of a change and some kind of a ending. Might be in a relationship, a company, you might be leaving a company, or yeah, this is what I'm getting. And but this change might feel hard for you, but this is for your highest good. ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, and this was something which was written, you know, this was destined for you. And during this time you might feel that you are
यू माइट फील पावरलेस, और अपने आप में यू डोंट, मतलब अपने आप को फील नहीं गॉड, कई बार तो ऐसे मेरे वर्डिंग्स ही मतलब निकलते नहीं है मुझे। ओके इसमें इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आप फील कर सकते हो लाइक यू आर लूजिंग योर माइंड, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, but just know that this whatever is happening, the main thing that you need to keep in mind is whatever is going to happen this year, it's happening for your highest good. हो सकता है वो चीज़ें थोड़ी uncomfortable हों, they are not pleasant, but just know that this is happening for your highest good. ये आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। For the time being आपको शायद थोड़ा lower feel हो, अच्छा ना लगे, whatever, but going forward you'll be more clear, you'll get the clarity in coming time. And then we have is the dream. Okay, maybe this thing again 6 and 6, this for most of you people this is about a relationship ending, and maybe इस relationship में आपने बहुत time दिया, अपना बहुत energy दिया है, but this is not meant to go ahead. And if this reading is not something जो आपको लग रहा है कि नहीं आपके लिए नहीं है ये reading, don't push it on yourself. इसको ज़बरदस्ती अपनी reading मत बनाइए, move on to the next pile and just check any other pile. Okay, but this is for specific people who have selected pile number 6. If you relate to it, great. If not, don't push it on yourself again. Okay, so yeah, there might be some things hidden from you which you don't know, but then again yes, okay, one more thing is coming up. अगर ये कोई relationship है जो आपका end हो रहा है, but just know there is a person who is destined to be in your life, and you might अगर हो सकता है कि आप इस इंसान से अभी तक मिले नहीं हैं, you will meet this person, but then उस चीज़ के लिए, और मे बी अगर ये जॉब के लिए है किसी का, तो ये बात कर रहा है एक अपॉर्चुनिटी के लिए which will bring you what you have always dreamt of, kind of, ठीक है। even if it is a relationship, then you're gonna attract a person in your life who is destined to be in your life, and this person is gonna be the one person. Okay, maybe हो सकता है यही फीलिंग आपने उस person के लिए पहले फील करते हो, okay, या इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कोई पैशन, could be anything. Okay, just relate, जो आपको just आपको रेजोनेट कर पा रहे हो जिसके साथ keep it, जिसके साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो leave it. That's how tarot reading काम, and that's how it works. Okay, basically जब आप एक जनरल रीडिंग पे होते हो. All right, and let's see what do we have a message from, I would say, Krishna. अपने धर्म का पालन करना चाहे वह दोषपूर्ण हो, दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है। यह श्लोक व्यक्तियों को दूसरों की तुलना करने के बजाय, I'm sorry if I don't see it clearly. Okay, now it's better. यह श्लोक व्यक्तियों को दूसरों की तुलना करने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। इस ध्यान केंद्रित करने से व्यक्ति की सुस्ती दूर हो सकती है और अपने मार्ग पर उद्देश्य और समर्पण की भावना विकसित हो सकती है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू, एंड ये जो मैसेज मैं पढ़ूंगी इससे आप लोग ही अपने तरीके से रिलेट कर पाओगे। इसमें आपके लिए कुछ तो मैसेज है, वो आप समझिए वो क्या मैसेज है। सबके लोगों के लिए ये मैसेज अलग अलग काम करेगा, अलग अलग फेजेस के लिए काम करेगा। सो जस्ट नो इट, ओके। एंड ऑल्सो 6 of Cups is also, yes, oh my God, okay. There are others of you, जो this is about yourself. Kind of आप अपना जो आज तक आप रहे हो, kind of there is a change happening in your personality, in a आपकी कैरेक्टर पूरे पर्सनालिटी में एक चेंज आ रहा है। You are evolving to be a better person, maybe just आपका जो आप रहे हो हमेशा से, इस साल वो चीज़ बदलने वाला है। अब ना उस चीज़ को कौन सी चीज़ ट्रिगर करेगी, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लोगों के अलग अलग सिनारियोज पे। बट देन डेफिनेटली ये भी कह रहा है कि अगर आप किसी भी इसमें हो उस पोजीशन में कि यू कंपेयर योर सेल्फ, आप अपने आप को इन्फीरियर समझते हो और दूसरों से हमेशा कंपेयर करते हो अपने लाइफ में, तो स्टॉप डूइंग दैट गाइज, ओके। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपना जो आपको करना है, व्हाट इज कम्पीट विद योर सेल्फ, ठीक है। आपका कंपटीशन आप होना चाहिए, आपको कल से बेहतर बनना है, ना कि आपको जब आप दूसरों से कंपेयर करोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, खुद के लिए हो, फाइनेंस के वजह उसमें हो या किसी भी चीज़ में हो, यू विल ऑलवेज गेट हर्ट।
क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समवन बेटर देन यू इन एनी फील्ड, चाहे वो शक्ल से, सूरत से, पैसे से, किसी भी चीज़ से कोई ना कोई हमेशा एक बेहतर होगा. सो इट्स ऑलवेज बेस्ट टू नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी अदर पर्सन, जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद योर सेल्फ, विद यू. राइट. सो आपको जो मेन फोकस आपका इस साल में रहना चाहिए, जो मैसेज है कि आपको stop comparing yourself and your situation with other people and start working on yourself. आपको कल से बेहतर बनना है. This is the message for you, and it's bringing some changes which will happen for your highest good, and it's going to bring you power, okay, with time. That's all for today, guys. That was the pile number 1. अगर आप रिलेट कर पाए, प्लीज़ डू गिव मी थम्स अप, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ, मुझे पता चले कि लोग रेट कर पा रहे हैं, उन्हें पसंद आ रहे हैं रीडिंग्स. सो उसके लिए आपको सिर्फ एक बटन है ना कोने में, उसको दबाना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना. एंड हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय. Right, so we have pile number 2. Let's see what we have got for you for 2026. King of Cups, okay? The Moon in reverse. King of Cups, oh my god, do you see King of Cups? मतलब ये दोनों ही tarot cards है, but these are two different kind of tarot cards. See, you've got King Knight. Oh, sorry, it's Knight of Cups. I am so sorry. Okay. So I don't know why, but agar if you were getting confused in pile number 1 and pile number 2, I will suggest to go for pile number 1 as well. वहाँ पे भी आपके लिए कोई मैसेज है. Okay, all right. So with the Knight of Cups and the Moon, the King of Cups, there's a masculine energy, a lot of masculine energy. At the same time, there is feminine energy, which is kind of reversed. Okay, all right. Let's check other cards as well. Flowering. Okay. All right. ये हम बाद में निकालेंगे guys. Okay. So I'll keep it here. Okay. So this message tells us there is something which you are kind of keeping in secret. कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आप से ही अपने साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं. दिस इज समथिंग विच इज़ विद इन यू. ओके, कोई ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसी बातें हैं, कोई ऐसी आप में आदतें हैं, कुछ भी हैं जो यू नो इट्स नॉट राइट. अपने आप को ही काइंड ऑफ आप मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कहीं ना कहीं अपने आप में. ओके, एंड दिस ईयर इफ यू कीप ऑन डूइंग दैट, एक्चुअली मे बी आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के अपने आप को बहुत बार आपने अपने आप को बदला है. यू नो, अपने थॉट पैटर्न्स, अपनी चीज़ें, अपनी मे बी जॉब्स तक, अपनी पढ़ाई के पाथ तक लोगों की वजह से बदला है. और वो जो कहीं ना कहीं देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशनल, जो मुझे फील हो रहा है, इट्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी. देयर इज, यू आर नॉट स्टेबल इमोशनली for sure. And this year will bring you opportunities which will help you go to this mode from this mode. And for few of you, maybe इस साल आपको कोई अप्रोच करे, लड़का या लड़की. दिस इज फॉर few of you, okay, not everyone. गाइज, मैं हमेशा बोलती हूँ जब टेरो रीडिंग देखते हो, ओनली टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव जो आपको रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो जिस चीज़ के साथ. ज़रूरी नहीं अपने पाइल नंबर 2 तो इसमें एक लाइन जो मैं बोलूँगी वो आपके लिए ही होगा. कुछ होगा आपके लिए जो आप रिलेट, आपको खुद महसूस होगा कि हाँ यार ये है, और जो नहीं आप रिलेट कर पा रहे हो उसको जस्ट लीव इट. तो आपके लिए नहीं है, वो किसी और के लिए होगा. राइट, इट्स अ जनरल रीडिंग. सो आप में से कुछ के लिए ऐसा है कि इस साल मुझे लग रहा है कि कोई है जो आपको अप्रोच करेगा. मे बी दिस पर्सन हैज़ ऑलवेज बिन देयर इन द बैकग्राउंड, बट दे विल अप्रोच यू एज यू नो, कि उनके लिए मन में तुम्हारे लिए फीलिंग होगी काफ़ी टाइम से. बट जस्ट मे बी, और जस्ट बिकॉज यू आर हर्ट इन योर सेल्फ, और या फिर अपने आप में आप इमोशनली, मैंने कहा कि यू आर नॉट स्टेबल, सो यू माइट एंड अप गेटिंग इन रिलेशनशिप और एक्सेप्टिंग दिस पर्सन जो कि हमेशा से वही था, बट यू नो एज अ लवर और एज अ यू नो कोई रिलेशन ऐसा खास नहीं था. तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की तरफ जाओ.
बट नो दैट कि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, जस्ट बिकॉज क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, इफ अगर आपको ब्रेकअप से गुजर रहे हो तो आपको सोचो कंधा दे दे, कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो आपको बहुत संभाल रहा है या संभाल रही है, तो हमको लगता है कि ओ माय गॉड या दिस इज एवरीथिंग। तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है कि और ये ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में, हो सकता है कि जॉब से रिलेटेड हो सकता है कुछ फैमिली का कुछ वो हो, कंसर्न हो, बट कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज द राइट डील अपॉर्चुनिटी, बट दैट इज नॉट। यू हैव टू लाइक वेरी वेरी क्लियर, you have to be very very clear first within yourself. Okay, you have to like connect with yourself more this year. Try to go for meditation, try to sit in the nature with yourself. ठीक है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करिए एंड यस। वरना जो आपकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से आपको, आई नो कि इसके वजह से आपने पहले भी पास्ट में काफ़ी दुख और धोखा झेला है, बट देन गोइंग फॉरवर्ड इस साल भी अगर आप वो एनर्जी लेके जाएं तो आई मीन अगेन इट्स गोना रिपीट द साइकिल। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग अप फॉर यू गाइज कि आपको अपने इमोशंस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपको वो आपको आज तक सी इट देयर इज अगेन, अगर इफ आई टॉक अबाउट द बैलेंस नहीं है वहाँ पे, तो आपको फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ यू हैव टू एक्ट, जहाँ यू हैव टू से, वो अपने मन में ना रख के से इट, और कहीं जगह पे आपको जहाँ बोलने की जरूरत नहीं होती है वहाँ चुप रहिए। ओके, सो राइट, लेट्स जस्ट चेक व्हाट डू वी हैव हियर फ्रॉम कृष्णा। सो इट सेज, आत्म संयमी योगी इस प्रकार स्वयं को ईश्वर से जोड़कर भौतिक मलिनता से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के साथ निरंतर संपर्क में रहकर सर्वोच्च आनंद की स्थिति प्राप्त करता है। यह श्लोक उस आनंद को दर्शाता है जो एक योगी परमात्मा से निरंतर जुड़कर प्राप्त करता है। मन को शुद्ध कर और आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है जो किसी भी भौतिक सुख से कहीं श्रेष्ठ है। ओह माय गॉड, दिस इज सच रिलेटेबल टू द कार्ड्स दैट वी हैव पुल्ड अप। सी दिस कार्ड जो यहाँ पे है, मून इन रिवर्स, टेल्स कि आप अपने आप में ही कहीं बहुत सी झूठ बोलते आए हो, यू आर नॉट वेल कनेक्टेड विद योर सेल्फ। एंड अगर आप अपने साथ ही कनेक्टेड नहीं हो तो दैट मीन्स इट शोज कि आपका भगवान के साथ भी रिलेशन इज वेरी वीक। ठीक है, सो आत्म संयमी योगी, ओके, इस प्रकार स्वयं को ईश्वर से जोड़कर, जब आप अपने साथ कनेक्ट होते हो देन ओनली यू कैन गेट कनेक्टेड टू गॉड मोर। अपने आप से आप दूर जा रहे हो, यू डोंट अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू आर नॉट सिटिंग विद योर सेल्फ एंड देन यू आर ट्राइंग टू रीच आउट टू गॉड, तो वैसे नहीं हो पाएगा। ओके, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स वर्क। जितना आप अपने साथ खुद कनेक्टेड रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान के करीब जा पाओगे। ठीक है, एंड अगेन दिस इंस्टेबिलिटी हैज कॉज्ड यू बहुत सारे तरीके का लॉस, hurt and all that, and this is the time you should start working on it. Okay, you have to be this atma sanyami yogi, all right, and अपने मन को शुद्ध करके अपनी आत्मा पर ध्यान फोकस करके, जो मैं भी बोल रही थी, you should focus on yourself, right, should work on yourself, should sit with yourself। तो इसी चीज से व्यक्ति दिव्य सुख का अनुभव करता है जो किसी भी भौतिक सुख से, फिजिकल की जो भी खुशियां हैं, चाहे वो पैसा है या कोई लवर है, उस चीज से कहीं ऊंचा है ये खुद का सेल्फ लव, जो आप खुद अपने आप से अपने आप में कंप्लीट होते हैं उस चीज का जो आनंद है, दैट इज लाइक टोटली आई मीन उसका कुछ मतलब मैं वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब आप खुद से बिल्कुल प्यार में होते हो एंड लाइक खुद के साथ वेल कनेक्टेड होते हो, आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, तो आप उसी तरीके के लोग भी अट्रैक्ट करते हो। तो लोग आपको नहीं बताएंगे कि आपको क्या करना है, कि आपको कहाँ करना चाहिए, आपको किसके साथ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आप खुद अपने बारे में इतना समझते हो कि आपको लोगों क्या बोल रहे हैं उससे आप कई लोग आपको मिसलीड करते हैं। लोग अपनी लाइफ में खुद ही इतना परेशान होते हैं कि वो आपको क्या लीड करेंगे, बट स्टिल हम सबको किसी न किसी तरीके से, कई लोग हेल्प करने के चक्कर में, कई लोग तो एक्चुअली तुम्हारा नुकसान करने के चक्कर में तुम्हें बहुत सी गाइडेंस देते रहेंगे यहाँ से वहाँ। बट व्हेन यू नो योर सेल्फ वेरी वेल, तो आपको ये पता होगा हमेशा इंट्यूशन के थ्रू कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं है। सो दैट्स व्हाट द मैसेज फॉर यू गाइज इज। एंड अगर आप इसमें से रिलेट कर पाए हो इसे, सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई नो कि people are relating and I should put more videos on it. And secondary, you can share the video, and if you're not subscribed, do subscribe because I'm gonna put videos every day. And yeah, I'll see you next time. Tab tak ke liye, bye. So pile number 3, let's see what we have got for you. Queen of Cups,
7 of Swords, the Hermit mode. Intensity. सच बोलूं, ये साल ना बहुत से लोगों के लिए ना अवेकनिंग होगा. एक एनर्जी है जो तीनों पाइल्स में मैंने देखा है. इट्स ऑल अबाउट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. एंड हर्मिट इन दिस कार्ड इज शोइंग मी द अगेन द सेम थिंग. दिस इज हाई टाइम. लोग अपने आप से बहुत वंचित रह चुके हैं. ओ माई गॉड, मेरी हिंदी, इनकी से मेरी हिंदी ऐसी हो रही ना. ओके, सो राइट, देयर इज अगैन एन अवेकनिंग हैपनिंग स्पेशली फॉर यू. उस दूसरे पाइल्स में कुछ और भी चीज़ें थी, but for this particular pile especially feel there is a awakening happening here. Yeah, और ये जो अवेकनिंग होगी, हो सकता है किसी तरीके से आपको ट्रिगर करेगी कोई चीज़ आपकी लाइफ में. सम काइंड ऑफ धोखा अपने आप से, कलीग से, रिश्ते में, कहीं पे कुछ ऐसी कोई चीज़ होगी. डिसेप्टिव एनर्जी मैं फील कर सकती हूँ यहाँ पे. तो उस एनर्जी की वजह से जो आपको ऑफ कोर्स वो अच्छा नहीं होगा. यू विल बी हर्ट बिकॉज ऑफ दैट. बट देन वो जो चीज़ आपके अंदर ट्रिगर करेगा, दैट विल लीड टू योर अवेकनिंग. एंड दिस इज हैपनिंग फॉर योर गुड. एंड दिस माइट बी वेरी इंटेंस. एंड वो जो अवेकनिंग होगी ना, आपको बहुत, मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि बहुत लंबे टाइम तक उस दुख में बैठे रहोगे उस टाइम पे. बट बहुत जल्दी यू विल बी अवेयर, you know, why it was supposed to happen the way it happened. And also this year you have to sit and explore your inner self. You have to gain some knowledge about yourself. You have to learn things about yourself. You have to go in self introspection again. बहुत टाइम से आई थिंक यू आर अवॉइडिंग योर सेल्फ. देयर बहुत सी चीज़ें जो आपके अंदर चलती है, बट आप कभी भी उस चीज़ के बारे में बैठ के आपने सोचा नहीं है, टाइम नहीं दिया. यू जस्ट ट्राई टू अवॉइड इट. शायद किसी नशे से, सिगरेट्स के थ्रू, बाहर निकल के दोस्तों के साथ फालतू की बातें करके. बट देयर इज समथिंग यू आर अवॉइडिंग, और जो आप कहीं ना कहीं जानते हो व्हाट इट इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, जिनको ये जो रिलेट कर पाते वीडियो है, जिनके साथ एग्जैक्टली है, दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स अबाउट यू. There's something you're, अपने आप को ही कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं, अपने आप से भाग रहे हो कहीं ना कहीं तुम. दिस इज़ द ईयर कि, क्योंकि अब जब तक आपको वो पुश नहीं मिलेगा, आप तब तक you're not gonna wake up, or you're not gonna face yourself. So there's something happening this year which will trigger you, which will force you to sit with yourself and think about it. और इस चीज़ के लिए यू नीड टू बी इन अ वेरी मच ऑफ फेमिनिन एनर्जी. अगर आप कोई मेल भी हैं तब भी, हर इंसान में फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं. फेमिनिन इज मोर इंट्यूटिव, इमोशन बेसिस पे. तो ये जो आप काम करोगे सिटिंग विद योर सेल्फ, दिस हैज़ टू बी ऑन योर इमोशनल बेसिस. इस पर आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करके काम करना होगा, अपने मेल ईगो को साइड में रख के. And this will bring some intense changes in your life आगे जा करके, जिसके लिए you'll be grateful. Okay, and let's see what do we have here, the Krishna message. It says, जो व्यक्ति मुझे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, सभी लोगों का महेश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है, वह शांति प्राप्त करता है. जो व्यक्ति मुझे यज्ञ और तपस्या का भोक्ता, सभी लोगों को महेश्वर और सभी प्राणियों का सच्चा मित्र जानता है. अगेन दिस थिंग, जैसे हर्मिट मोड वाला जो है, इट्स ऑल अबाउट, अगर हम इसको, हर्मिट तो इंग्लिश वर्ड है, अगर हम इसको एज ए हिंदी उसमें देखा जाए, इट्स ऑल अबाउट, जैसे साधु लोग होते हैं, दे गो ऑन मेडिटेशन एंड ऑल दैट. सो दिस इज बेसिकली दैट एनर्जी ओनली विच यू हैव टू गो. इट्स नॉट लाइक आई एम सेइंग कि आप चले जाओ कहीं पहाड़ों में एंड देन सिट देयर तपस्या करो. नो, इट इज सिटिंग विद योर सेल्फ, गिविंग योर सेल्फ एवरी डे सम टाइम where you at least meditate and do the self introspection. You can do it in the nature, sit alone, sit with yourself and just accept जो भी आपके अंदर गलत चीज़ें हैं या जो आपको नुकसान पहुंचाती है या फिर लोगों को पहुंचाती है. यू हैव टू फिक्स दिस. या एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू गो थ्रू दिस ईयर. ओके, इट्स मेंट टू बी दिस वे.
and just know कि whatever is gonna happen, this is for your highest good. All right, that's all for today for this pile number 3. And अगर आप relate कर पाए वीडियो के साथ, do give me the thumbs up and subscribe, and I'll see you in the next video. तब तक के लिए bye.